welcome you in today live sessions on Instagram. Respected sir, we would like to take your permissions to start the live session. Yeah, sure, you can start now. So first of all, we would like to know how to prepare for the UPSC examinations. Students want to know. First of all, I would like to welcome all the students in this live session. I would thank to the Nirak Free Education Foundation for organizing this webinar. As far as the Union Public Service Commission is concerned, I would like to tell that the Union Public Service Commission conducts various examinations for recruitment into the central government. And one of the most important examination conducted by the UPSC is the Civil Services Examination, through which the students get recruitment into services like Indian Administrative Service, Indian Foreign Service, Indian Police Service, and there are 23 such services through which the UPSC provides recruitment into the through the Civil Service Examination. So basically, the examination consists of 3 stages. The first is the preliminary examination, second is the main examination, and third is the interview stage. So in the preliminary examination, there are only 2 subjects. First is general studies and second is the aptitude test. In the main examination, there are 9 subjects. There are 4 subjects of general studies, 2 papers of you have to select one optional paper. For that, there will be 2 papers. And then there is one essay paper, there is one English language compulsory paper, and one paper of your local language of your mother tongue. And thirdly, if you qualify the main examination, then there is the interview stage, in which general questions regarding your profile, regarding the current affairs, regarding your optional subject, and regarding your degree are asked from you. So basically, when we talk about the preparation of UPSC, so basically I would like to tell that the prelims examination is a sort of a subset of the main examination. So the syllabus of prelims is lesser than that of the main examination. So I would suggest that you should prepare for prelims and mains together, because the syllabus is same. So if you prepare for the main examination, you would be automatically preparing for the prelims examination. So you should directly start preparation for the main examination. And in the main examination, there are subjects like history is there, world history, Indian history, then culture is there, then geography is there, then environment is there, sociology is there, polity is there, governance is there, international relations is there, economics is there, science and technology is there, internal security is there, and ethics is there. So basically, what I would like to suggest is that you should select your books carefully, and once you have selected your books, you should read a book at least 3 to 4 times before the prelims examination. So basically, you have to be very judicious while selecting your books. If you select wrong books, you would automatically waste your time. So basically, what you should do is, first of all, just read the syllabus of the main examination, and for each topic, select from where you are going to study, and select the book from where you are going to study. Once you select the book, start studying the book, and start studying the book at least 3 to 4 times. So basically, you can select the books according to various people who have qualified the examination. After you can see the internet also, you can select the books. But some of the books are there which are very important, which everyone should read. And I would just like to name 2 to 3 of them. So first of those books is the India book, which is published by the Ministry of Information and Broadcasting, which is a very important book for the civil services examination, and questions are definitely asked from it. The second important book is your economic survey, which is published by the Ministry of Finance. So these are the 2 important books which I would say that no aspirant should prepare without reading these 2 books. Apart from that, there are many other books for history, for geography, for culture, for economics, etc. And I have also mentioned
about that in my blog, which is lohitmatani.wordpress.com. You can refer that. But here I'm just trying to highlight only the most important books. So it is the India Yearbook published by the Ministry of Information and Broadcasting, and the second is the Economic Survey, which is published by the Ministry of Finance. Apart from that, the So, most important, yeah, so I would like to interrupt. There is your one book that is internal security. yes, आपके द्वारा एक book लिखी गई इंटरनल सिक्योरिटी। सर इसमें आपने बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड मैपिंग फॉर द क्विक रिवीजन, जब मैं आपके बुक के गो थ्रू जा रहा था अपेंडिक्स के, तो इट वाज जस्ट लाइक जैसे टॉपिक देखते ही पढ़ने का मन कर रहा था, लास्ट तक हमने कंटिन्यू किया उसके थ्रू। बट सर द थिंग इज दैट स्टूडेंट नो द सिलेबस, दे नो व्हाट टू डू, बट दे डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर, how to manage. Just you have made the mind map for the quick revision, just like that how you will make the mind map for the quick revision in UPSC paper for cracking the examination. see, like I have made a mind map for each chapter. So once you, Exactly, sir. so for the when you're doing the first revision, you have to read the whole chapter. But for when you are reading for the first time, you read the whole chapter. When you are reading for the second time, so you just read certain important parts which you have highlighted in the first reading. Then when you read for the third time, you again you decrease what you are reading and you highlight more and more. And at the fourth stage of revision, you are sort of making mind map from what you have read, like I have made in that book. And once you are going to the examination, you have only 15 days, 10 days left, so you read these mind maps, and from these mind maps you can recall everything. So in UPSC what happens is that long answer questions are asked, in which you have to write long answer. Yes. Sorry to interrupt, sir. Sir, if you will be bilingual, so the student will be comfortable to understand, because Okay. most of the students are from the Hindi medium as well as English medium. But if Okay. you will be bilingual, they will understand you in better way. तो इसमें आप जब तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो आपको पूरा किताब पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद जब आप सेकंड बार पढ़ते हैं तो आप उसमें चीजों को हाईलाइट करते हैं और उन चीजों को ही पढ़ते हैं। फिर थर्ड टाइम जब रिवीजन करते हैं तो फिर आप उसको थोड़ा कम करके और फर्दर जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करके उनको पढ़ते हैं। और फोर्थ टाइम जब आप पढ़ते हैं तब आप एक माइंड मैप पे आते हैं। फोर्थ टाइम आप जब पढ़ते हैं तो आप केवल एक कोशिश करते हैं कि पूरे चैप्टर को मैं 1 पेज या 2 पेज में निचोड़ सकूं ताकि मुझे पूरा चैप्टर याद रहे। और इसमें जो माइंड मैप्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है, उनका एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान में रहेगा, या फिर आप एग्जाम में जाके अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। तो इस वजह से आप जब फोर्थ टाइम रिवीजन करते हैं तो आपने ये माइंड मैप इस टाइप के बनाने चाहिए, ताकि जब आपका जब एग्जामिनेशन में 10 दिन 15 दिन बचे हों तब आप पूरा रिवीजन दोबारा से नहीं कर सकते। तब आप इन माइंड मैप को देखते हैं, और जब आप माइंड मैप को देखते हैं तो आपको पूरा चैप्टर एक तरीके से रिकॉल हो जाता है। और एग्जामिनेशन में भी ऐसा होता है, कोई टॉपिक्स पूछे जाते हैं जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, उनमें टॉपिक्स में आपसे एक टॉपिक के बारे में पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन होगा, और उस क्वेश्चन को याद करके देखने के बाद आपको एक माइंड मैप याद आना चाहिए। एक माइंड मैप एक डायग्राम टाइप का याद आना चाहिए। उस डायग्राम के ऊपर से आप पूरा आंसर लिख पाएंगे। आप जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम लोग पढ़ते हैं और उसमें हम लोग हम लोग को पूरे आंसर्स याद रहते हैं, वैसा यूपीएससी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा है। इसलिए ये कुछ डायग्राम्स है, कुछ चीजें जो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, वैसा एक स्केलेटन लेके आप आंसर्स लिख सकते हैं। तो इतने जितने ज्यादा आप माइंड सर जैसे ही सर हमने आपके इंटरनल सिक्योरिटी के बुक के गो थ्रू गया था हमने, तो हमने ये देखा इसमें सर इसमें आपने जो अपेंडिक्स बना रखा है लास्ट में, माइंड मैप, लिस्ट ऑफ केस स्टडी, इंपॉर्टेंस टर्म्स, इसी तरीके से हमने पढ़ा तो हमें ये लगा यूपीएससी का भी सेम पैटर्न ही है, पहले माइंड मैप बनाना, फिर लिस्ट बनाना, किस तरीके से प्रिपरेशन आगे की किस तरीके से प्रोसीजर करना चाहिए सर। तो सर हमें जो लग रहा है सर, आपको इस चीज के बारे में बेटर मैनेजमेंट का आइडिया। स्टूडेंट के पास सबसे ज्यादा, सारे बच्चे के पास 1 ईयर का ही टाइमिंग रहता है, 2 ईयर का ही, बट वो उस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं, प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। इनके पीछे उनकी क्या रीजन आती है सर? आप अपने सर आपके टाइम जब आपने 2014 में पेपर क्रैक किया था यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उस टाइम में सर आपके टाइम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आपने कोचिंग लिया,
तो बच्चे आज के डेट में सर क्या करना चाहिए, बच्चे को किस तरीके से करना चाहिए सारा फैसिलिटी होने के बाद भी? कि अभी का जो इशू है, जो हाँ जी उस सर। टाइम पे भी था लेकिन अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो है कि इंफॉर्मेशन का जो ओवरलोड है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बहुत हाँ ज्यादा जी। है, और इंफॉर्मेशन में से सेलेक्ट करना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। और इंटरनेट चीप होने की वजह से यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन सब चीजों पे जो मटेरियल अवेलेबल है, ये आपको केवल और केवल मिसगाइड करने के लिए है, केवल और केवल आपको डाइवर्ट करने के लिए है। आपको चाहिए कि आप केवल और केवल एक ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक से ही पढ़ें। ये जैसे मैंने सर आपको बताया। इट मीन्स यू आर सेइंग दैट जो बच्चों को जो आजकल कोचिंग वाले जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, दे आर जस्ट फॉर द अर्निंग। बच्चों को एक तरीके से गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन उस तरीके से आगे की प्रिपरेशन नहीं करवा पा रहे हैं। नहीं, गाइडेंस के लिए आप कहीं पे भी जाइए, गाइडेंस आपको कोई भी दे सकता है, लेकिन गाइडेंस आप कितना लेंगे? गाइडेंस एक बार, दो बार, तीन बार, आपको पढ़ना तो अपने आप ही है। एग्जैक्टली अब एग्जैक्टली। डेली तो बैठ के गाइडेंस नहीं ले सकते ना। एक बार नहीं आपने सर, नहीं गाइडेंस सर। ले ली, एक बार आपने रोड मैप बना लिया अपना पढ़ने का, देन फिर हम्म। आपको पढ़ना है। लेकिन आप, कुछ बच्चे जो ऑनलाइन कुछ यूट्यूब वीडियो देख के पढ़ते हैं, कुछ ऑनलाइन ऐप पे पढ़ते हैं, वो मेरे हिसाब से एकदम गलत है। हाँ जी आपको सर। सिलेक्शन के लिए ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, और उसी से ही आप सेलेक्ट हो पाएंगे। सेल्फ स्टडी इज द की। सेल्फ स्टडी से ही आदमी आज से सेलेक्ट होता है, और आगे भी सेलेक्ट होगा। और अगर आप कोचिंग ले भी रहे हैं, आप कोई ऑनलाइन क्लासेस ले भी रहे हैं, या यूट्यूब वीडियो देख भी रहे हैं, तो उसके अलावा आपको वो चीज करनी पड़ेगी जो टेक्स्ट बुक से पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप उधर भी जाएंगे और आपको टेक्स्ट बुक से भी पढ़ना पड़ेगा। देन आपको मैनेज करना है। अगर आप 10 घंटे टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं, उसके बाद भी कोचिंग ले सकते हैं, तो देन इट्स योर लाइफ। लेकिन अगर आप सोचे कि मैं कोचिंग में जाऊं 8 घंटा और फिर 2 ही घंटा सेल्फ स्टडी करूं, तो फिर ये चीज नहीं चलेगी। आपको एटलीस्ट 10 आवर्स सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। सर आज के डेट में जो बच्चे फेस कर रहे हैं, आप अपने टाइम में भी प्रिपरेशन के टाइम में ये फेस किया था, आपने किस तरीके से मैनेज किया सर इस चीज को? किस तरीके से नहीं, प्रिपरेशन करना चाहिए, टाइम शेड्यूल एंड ऑल दिस? मैनेज आपको अपना डे, आपको अपना मंथ, आपको अपना ईयर पूरा प्लानिंग के साथ ही करना पड़ेगा। आप प्लान हाँ जी नहीं हाँ कर जी। पाएंगे तो आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोच भी नहीं पा रहे हैं कि आपका सिलेबस कैसे कैसे खत्म होगा, तो आप ये बताइए कि सिलेबस खत्म करेंगे कैसे। इसलिए जरूरी है कि आपके पूरा साल, पूरा महीना और एक दिन भी प्लान करना जरूरी है। आपको एक दिन प्लान करना पड़ेगा कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें बेसिकली जब मैं करता था, तो मेरा ये रहता था कि दिन को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता था, जिसमें तीन जी जी। घंटे 3 घंटे 3 घंटे, और फिर 1 1.5 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। उसमें मैं क्या करता हाँ था जी। कि जैसे 6 बजे से पढ़ना चालू किया तो 6 से 9, फिर 1 घंटे का रेस्ट लेके फिर 10 से 1, फिर 1 घंटे का रेस्ट लेके फिर 2 से 5, फिर 1 घंटे का रेस्ट लेके 6 से 9, फिर एक न्यूज़पेपर। इस तरीके से मैं डे को डिवाइड करता था, और हर तीन सर घंटे में आपका मैं हर, जितना भी टाइम शेड्यूल था सारा प्री प्री प्लान था, यस, तो किस जो भी तरीके से हर हमें मैनेज करना है एक ठीक? एक रात पहले ही आपको देखना पड़ेगा कि, और हर 3 घंटे में आपको अलग अलग चीज पढ़नी है। एक ही टॉपिक को आप दिन भर में मत पढ़िए। आप पहले जी तीन जी। घंटे में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दूसरे 3 घंटे में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तीसरे 3 घंटे में आप दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और आपको 1 या 1.5 घंटा बचा हुआ आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, 1 या 2 न्यूज़पेपर, आप जो भी पढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि आप 3 घंटे में पूरा फोकस के साथ पढ़ते हैं। आपने अगर सोचा कि मुझे आज पॉलिटी का फंडामेंटल राइट पढ़ना है 3 घंटे में, तो आप हम्म। 3 घंटे में कंप्लीट करेंगे। और अगर आप सोचेंगे कि मुझे ये आज के दिन में फंडामेंटल राइट पढ़ना है, तो आप 10 घंटे में भी वही चीज पढ़ेंगे जो आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आप जी जी। 3 घंटे में पढ़ते हैं, तो आपका फोकस बढ़ता है, आपका समय जी। कम खर्च भी होगा, और आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है आगे जाके वो भी बढ़ेगी। तो ये विन विन सिचुएशन है। और, और इसके कॉन्ट्रास्ट में कुछ बच्चे क्या करते हैं कि देखते हैं कि कब खत्म होगा, फंडामेंटल राइट पढ़ना चालू तो करें, धीरे धीरे तो पढ़े। उससे आपका पहले तो कंसंट्रेशन पावर कम होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, सिलेबस खत्म नहीं होगा। इसलिए विन विन सिचुएशन आप 3 3 घंटे में डिवाइड कीजिए, और एक कोशिश कीजिए कि पूरा टॉपिक एक 3 घंटे में खत्म करना है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अरे जल्दी जल्दी पढ़ा तो याद नहीं हो रहा है। याद तो कुछ होने वाला भी नहीं है, रटने पे आप जाइए ही नहीं, रटने से कुछ नहीं होने वाला। आप एक बार पढ़े हैं,
उसके बाद जब आप सेकंड टाइम पढ़ेंगे, फिर थर्ड टाइम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जी। कोई कुछ पूछ रहा था शायद। नहीं सर, सर तो बच्चों का कुछ जी। क्वेश्चन है, हम्म। जैसे हाउ इज स्टडी लाइफ में ऑफ आईपीएस, हाउ इज लाइफ ऑफ आईपीएस, आईपीएस की लाइफ कैसी होती है? आईपीएस ऑफिसर की लाइफ देखिए थोड़ी सी बिजी रहती है, और मतलब एक फायर फाइटिंग फोकस। जॉब है जिसको कह सकते हैं। फायर फाइटिंग जॉब मतलब कि इसमें हम ये तैयारी कर रहे हैं प्लानिंग के साथ में, लेकिन शायद कभी कभी आईपीएस का काम प्लानिंग के साथ में नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें जो आपका वर्क है वो आपने जो प्लान किया है, जो आपका डेली शेड्यूल है, उसके अलावा सोसाइटी आपके लिए वर्क क्रिएट करती है डेली। वो कब क्रिएट करेगी, कब कोई क्राइम होगा, वो सोसाइटी पे डिपेंड होता है। उसका टाइमिंग फिक्स नहीं है, उसका शेड्यूल फिक्स नहीं है। आप कुछ और प्लान करेंगे और हो कुछ और जाएगा। तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सी लाइफ रहती है। और एक सोसाइटी के साथ में और सोसाइटी के बीच में रह के काम करने का मौका मिलता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा जॉब होगा, कोई भी ऐसी प्रोफाइल होगी जो सोसाइटी को ऐसे क्रॉस सेक्शन में जानने का मौका किसी को देगी जितना एक आईपीएस ऑफिसर, एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन देती है। हम लोग उसको, हाँ जी, हाँ सोसाइटी जी। को एकदम, जो सोसाइटी की बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, जो उसके अलग अलग डाइवर्सिटी है, उसको हम लोग समझ पाते हैं। और उस जिस एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, शायद से उसका कल्चर, उसका हेरिटेज, उसकी वैल्यूज, उसकी डाइवर्सिटी हम लोग सब जान जाते हैं। तो इट इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। काम ज्यादा करना पड़ता है लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सर कैन अ वीक एंड एवरेज स्टूडेंट क्रैक यूपीएससी पेपर? नहीं देखिए, वीक एंड एवरेज स्टूडेंट क्रैक यूपीएससी पेपर तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हर पेपर को वीक एंड एवरेज स्टूडेंट क्रैक कर सकता है। और वीक एंड एवरेज मुझे लगता ही नहीं कि ऐसा कोई शब्द होना भी चाहिए, क्योंकि जब उसने रियलाइज किया कि मैं कर सकता हूँ, तब वो कर पाएगा। जब वो बोलता रहेगा कि मैं वीक एंड एवरेज हूँ, तो वो वीक एंड एवरेज ही रह जाएगा। तो उसने रियलाइज करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ये कोई एवरेज और वीक और ये सब कुछ बेकार की बातें होती है, कोई इसका कोई मतलब नहीं होता। मेहनत जो खुद की करेगा वो जरूर सेल्फ क्वालिफाई कॉन्फिडेंस करेगा। डाउन करना होता है। जी जी जी। सर विच मीडियम इज बेस्ट फॉर यूपीएससी? यूपीएससी के लिए कौन सा मीडियम बच्चों के लिए अच्छा है? को बहुत बच्चे इंग्लिश टॉपर देखा तो इंग्लिश की तरफ जाने लग जाते हैं, हिंदी टॉपर देखते थे हिंदी की तरफ जाने लग जाते हैं, तो अब बच्चों के लिए देखिए, कौन सा? ये तो कोई बात ही हाँ, नहीं है। जो आपका स्कूल में मीडियम रहा है, आपको वही लेना पड़ेगा। अब आपका स्कूल में हिंदी इंग्लिश मीडियम रहा है और आप हिंदी मीडियम ले लेंगे तो आपका क्वालिफाई नहीं होगा। और हिंदी मीडियम रहा है और आप इंग्लिश मीडियम लेंगे तो आपको तकलीफ आएगी। तो बेसिकली आपका जो मीडियम रहा है स्कूल और कॉलेज में, वो आपके लिए अच्छा है। सर और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ ए स्टूडेंट कैन फेस यूपीएससी इंटरव्यू? किस तरीके से स्टूडेंट को यूपीएससी इंटरव्यू फेस करना चाहिए? देखिए, पहले तो उसने प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करना चाहिए, फिर जी इंटरव्यू जी। के बारे में उसने सोचना चाहिए। और सर इंटरव्यू बच्चे फेस होते तो हैं ना, बहुत आगे की सोचते हैं। देखिए, यूपीएससी इंटरव्यू में मैंने जैसे बताया कि आपके प्रोफाइल के बारे में पूछा जाएगा। आप कहाँ से कहाँ पे पैदा हुए हैं, कहाँ कहाँ पे रहे हैं, वो शहरों के बारे में पूछा जाएगा। उस शहर में क्या योजनाएं चल रही हैं आज की डेट में, उस शहर का डेवलपमेंट किस प्रकार का है, उस शहर की प्लानिंग किस प्रकार की है, किस प्रकार के रोड्स हैं, किस प्रकार की रेलवेज वहां पे आती हैं, किस प्रकार की वाटर बॉडीज हैं, कौन वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, किस प्रकार की वहाँ की डाइवर्सिटी है, किस प्रकार की पॉपुलेशन की क्लासिफिकेशन है, कितने मुस्लिम पॉपुलेशन है, कितनी हिंदू पॉपुलेशन है, सर इट्स जस्ट कितने। लाइक मेंटेलिटी टेस्ट। हाँ, तो ये आपकी लोकल प्रोफाइल, आपका जो सब्जेक्ट है, और अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर, ये तीन चार चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर जब इंटरव्यू बच्चे देते हैं, इट इज नेसेसरी टू स्पीक इन इंग्लिश इन इंटरव्यू? नहीं, आपकी जो लैंग्वेज है आप उसमें बात करेंगे। नहीं, बच्चे होते हैं ना सेल्फ मोटिवेट करने के लिए, कभी बोलते हैं मुझे इंग्लिश आता है, मैं इंटरव्यू कैसे बोलूंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो आते हैं गुड मॉर्निंग इंग्लिश से स्टार्ट होता है। नहीं 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 नहीं, तो आप इस हिंदी तरीके में से बोल बच्चों का सकते हैं। क्वेश्चन रहता हिंदी हिंदी में भी बात कर सकते हैं, इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। आपकी मदर टंग है तो आप पहले बता के उसमें भी बात कर सकते हैं। है। सर किस तरीके से बच्चे को इंटरव्यू फेस करना चाहिए जिससे वो स्कोर हाई कर सके? नहीं, वही मैंने बताया ना इनमें आपको कुछ आपको बच्चे सर आपको ज्वाइंट हैं जो यूपीएससी मेंस भी क्रैक कर रखा है, बट वो इंटरव्यू में जाने के बाद नहीं हो पाता उनको,
तो वो ये पूछना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से करें जो आगे देखिए, की स्कोर हाई। मैंने ये बताया कि उसमें क्या पूछा जाता है। पहले आपकी लोकल प्रोफाइल, आप कहाँ से आए हैं, आप क्या कौन से कॉलेज में पढ़े हैं, कौन से शहर से आए हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं, ये आप अपने फॉर्म में भरते हैं। उसके ऊपर से आपसे, आपके जो फॉर्म भरा आपने, उसके ऊपर से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उस पर सवाल पूछे जाते हैं, जनरल स्टडीज के सवाल पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के सवाल पूछे जाते हैं। आपका जो ग्रेजुएशन हुआ है उसमें से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको तैयारी का पार्ट हो गया। अब बात रह गई कि आपने वहां पे जाके किस तरीके से आपने इंटरव्यू देना चाहिए। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आप फ्लुएंट होने चाहिए। आप इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश फ्लुएंटली बोलेंगे। अगर आप अ, हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं तो हिंदी आप फ्लुएंटली बोलेंगे। आप अपनी मदर टंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो मदर टंग फ्लुएंटली बोलेंगे। वहां पे आप बाई सर लिंगुअल आप नहीं हो सकते। और बाकी आपको सर आपके अकॉर्डिंग जो बाकी 2 ईयर आपको इज इनफ फॉर बाकी यूपीएससी आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आपने 4 या 5 मॉक इंटरव्यू या मिनिमम 3 मॉक इंटरव्यू देना देने चाहिए? चाहिए, जिससे आपकी तैयारी होगी जी। सर ये 2 ईयर इनफ है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, या फिर इससे मोर ईयर चाहिए? नहीं नहीं, 2 ईयर इनफ है। इनफ है ना सर? जी जी। और किस किस स्टेज पे स्टार्ट प्रिपरेशन करना चाहिए सर, आफ्टर 12th ग्रेजुएशन 10th बेसिस पे? ग्रेजुएशन के टाइम पे करना चाहिए, जब आपका 12th हो चुका है आफ्टर और आप 12th? ग्रेजुएट, हाँ जी हाँ जी। जब 12th हो चुका है सर और आप सबसे ग्रेजुएशन में है। जी, वाई यूपीएससी एस्पिरेंट फेल इन यूपीएससी एग्जाम? सर क्या रीजन होती है जो बच्चे फेल हो जाते हैं सर पेपर में, देखिए, सबसे अच्छे पहला रीजन तो प्रिपरेशन ये, होने के बाद? सबसे पहला रीजन फेल होने का ये है कि सीट बहुत कम है और देने वाले बच्चे बहुत ज्यादा है। तो फिर अच्छा मेजोरिटी अच्छा। ऑफ बच्चे फेल ही होंगे और माइनॉरिटी सेलेक्ट होंगे। ये सबसे पहला रीजन है। नहीं सर, कुछ होता है किसी के अंदर नॉलेज ज्यादा है, किसी के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट ज्यादा है, वे नहीं, ऑफ टॉकिंग, तो कहीं। मेरा ये मानना है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह तो बाद में आता है। पहले तो आपको प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करना है। तो प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले आपके हार्डवर्क होना चाहिए। जो आप सही प्रिपरेशन कीजिए, सही जगह से पढ़िए, समय मत खराब कीजिए, पिछले हम्म। सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, एक सही स्ट्रेटेजी को अपनाइए और स्ट्रेटेजी को आखिरी तक लेकर जाइए, उसको पूरा कीजिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप रैंडम कहीं चले गए, दिल्ली चले गए, वहां पे रैंडम कहीं कोचिंग कर लिए, कहीं क्लास ले रहे हैं, कहीं किसी की बात सुन ली, कहीं कोई किताब से पढ़ लिया, कुछ आपका प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर वो फेलियर की तरफ जाता है। और आपने जो अच्छा जी। प्लानिंग किया है, एक अच्छी प्लानिंग की और उस प्लानिंग को पूरा किया, तो ऑटोमेटिकली हमेशा आपका सिलेक्शन होता ही होता है। सर और ऑप्शनल सब्जेक्ट को किस बेसिस पे सेलेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट को? ऑप्शनल सब्जेक्ट देखिए, जो आपका कॉलेज में ग्रेजुएशन रहा है, अगर वो मैच कर रहा है तो वो आपके लिए बेस्ट है। नहीं ग्रेजुएशन मैच कर रहा है तो फिर आप साइंस ले सकते हैं, सोशल साइंस ले सकते हैं, या फिर लिटरेचर ले सकते हैं। सोशल साइंस में पढ़ने में आसान रहता है लेकिन मार्क्स लाने में मुश्किल रहता है। उसमें से भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर मार्क्स आ जाते हैं आपको, मतलब थोड़ा सेमी साइंस टाइप के हैं कि आपको क्वेश्चंस अगर आपने लिखे हैं तो आंसर अगर आपने लिखा है क्वेश्चन का तो और सही है तो मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें आपको बहुत ही डायनेमिक रहते हैं और क्वेश्चंस के आपको लगेगा कि आप सही आंसर लिख रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है आंसर गलत होते हैं। इसके अलावा जो लिटरेचर सब्जेक्ट्स हैं वो भी अच्छे रहते हैं। उनमें आपके एक फिक्स सिलेबस है, फिक्स सिलेबस को आप पढ़ते हैं तो आपके मार्क्स आ जाते हैं। तो इसमें आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट करता है, साइंस सूट करता है, सोशल साइंस सूट करता है, या लिटरेचर सूट करता है। उस हिसाब से आपने पढ़ना चाहिए। आप बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट हैं आपकी लैंग्वेज पे तो सोशल साइंस आपके लिए अच्छा है। आपकी टेक्निकल नॉलेज ज्यादा है तो साइंस अच्छा है, और अगर आपकी लिटरेरी नॉलेज ज्यादा है तो आपके लिए लिटरेचर अच्छा है। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सर यूपीएससी को मैराथन क्यों कहते हैं? बच्चे हमेशा कोई भी इंटरव्यू देता है तो यूपीएससी जस्ट लाइक अ मैराथन। देखिए, मैराथन में क्या होता है कि आप दौड़ना चालू करते हैं तो एक स्लोली चालू करते हैं, एक हाँ जी हाँ रफ्तार को आप जी। पकड़ते हैं, एक रिदम को आप पकड़ते हैं, और उसके हिसाब से चलते चलते आपने आखिरी तक जाना है। पेशेंस रखना है। 21 किलोमीटर आप दौड़ते हैं, 42 किलोमीटर आप दौड़ते हैं, तो आपने पेशेंस रखना है और एक एक स्पीड पकड़ के तैयारी करते जाना है। वहां पे ऐसा नहीं है कि आपने बीच में तेज दौड़ लिया फिर आप कोलैप्स हो गए, ऐसा नहीं कर सकते।
और उसके कंपैरिजन में ज्यादा एक स्प्रिंट होती है जिसमें आप बहुत तेज दौड़ते हैं फिर रुक जाते हैं, तो वो नहीं करना है। इसलिए यूपीएससी को एक मैराथन कहा गया है। आपने एक स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करनी है, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपने प्रिपरेशन करनी है और करते ही जानी है। जैसा आपने कहा कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आप धीरे 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 पढ़ते ही जाएंगे। आपकी स्ट्रेटेजी, आपने रोज 10 घंटा पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है कि आपने 1 हफ्ता पढ़ा फिर आपने 1 हफ्ता छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हर सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस दे के पढ़ना है। किसी सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना, किसी को कम पढ़ना, ये गलत है। इसलिए यूपीएससी को मैराथन कहा गया है कि आपने एक एक स्ट्रेटेजी बनानी है, स्ट्रेटेजी के साथ आपने एक पेस बनानी है और उस पेस, उस रिदम को पकड़ के आपने लास्ट तक जाना है। आपने बीच में कोलैप्स नहीं होना है, बीच में बीमार नहीं हो जाना है। कुछ लोगों को बीमार होने की बहुत आदत रहती है, बीच में बीमार नहीं क्योंकि होना सर है। सर एक आप अच्छे राइटर भी, आप बुक लिखते हो, उसके बाद आप एक सिविल सर्वेंट भी हो, तो हर तरीके से आप दोनों तरफ से आप एक एज अ टीचर भी सजेस्ट कर सकते हो, एज अ पब्लिक भी सजेस्ट कर सकते हो सर। तो बच्चे का एक क्वेश्चन ये आ रहा, हाउ टू इंक्रीज पेपर राइटिंग स्किल, किस तरीके से पेपर राइटिंग स्किल को हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए देखिए, एज अ पहले तो टीचर। हाँ जी। आप जब टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो लास्ट 35 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। किताबें मार्केट में अवेलेबल है 35 ईयर्स, 40 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की। टॉपिक वाइज भी अवेलेबल है, तो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपने आंसर खुद से लिखने ही चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लास्ट 35 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के आंसर लिखना। तो आपने लिखने चाहिए। और उसके अलावा जब आपका प्रीलिम्स हो जाए, मेंस आने वाला हो, तब आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज को जब आप ज्वाइन करेंगे तो फिर आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। उसके साथ में एक ऐसे हर 15 दिन में जो हॉट टॉपिक है उस पे एस्पिरेंट ने लिखना चाहिए और खुद लिखना चाहिए। हॉटेस्ट टॉपिक जो करंट अफेयर्स में मीडिया में चल रहा है उसके ऊपर से आप लिखिए, उसके जी। पूरा पहले रिसर्च कीजिए, फिर लिखिए, खुद से लिखिए। 3,000 वर्ड का, 4,000 वर्ड का, 10,000 वर्ड का। इससे आपकी राइटिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली अच्छी होती जाएंगी। सर बच्चे 10th के बाद किस बेसिस पे जाना, साइंस स्ट्रीम में जाना चाहिए या फिर आर्ट्स में, बच्चे जो बच्चे यूपीएससी का ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं नहीं, उससे 10th के कुछ बाद? लेना देना नहीं, उससे कोई लेना देना ही नहीं, उससे आप कोई कहीं लेना पे भी देना जाइए। नहीं है सर? नहीं 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 नहीं। सर आप अपने लाइफ के बारे में थोड़ी सी बताइए, किस तरीके से आप डेली रूटीन मैनेज करते हो? नहीं, मैंने क्योंकि जैसा आपको आजकल के बच्चे बताया कि मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि उसे एक पढ़ाई करना होता है, फिर भी वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते और बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। आपके ऊपर फैमिली प्रेशर, पब्लिक प्रेशर। आप सिलेक्शन के टाइम का प्लानिंग पूछ रहे हैं कि अभी का प्लानिंग पूछ रहे हैं? सर अभी की प्लानिंग बिफोर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन जब वो स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन बोलते हैं मेरे फैमिली प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो जब वो आपकी प्रॉब्लम देखें तो पहली फिर वो बात तो मोटिवेट पहली बात होंगे। तो आप ये जान लीजिए कि आप बीमार हो गए, ठीक है, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके हम्म। फैमिली में कुछ हो गया, फैमिली में कोई बीमार हो गया, इन सब चीजों से यूपीएससी को कुछ भी लेना देना नहीं है। आप जाके यूपीएससी को एक्सक्यूज नहीं दे सकते ऐसा कि भाई मेरी फैमिली में कोई बीमार हो गया या मैं बीमार हो गया या मेरा एक्सीडेंट हो गया, जो भी हो गया, कोई भी इस चीज से किसी को लेना देना नहीं है। ये आप ही की प्रॉब्लम है और आप ही को सॉल्व करनी है। इस बात को जान लीजिए। ये तो सिंपैथी लेना किसी की, ये छोड़ दीजिए। आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको केवल और केवल अच्छे मार्क्स लाने हैं और अच्छे मार्क्स से एग्जाम क्वालिफाई होगा। और उसके लिए आपको कम से कम 10 घंटा डेली पढ़ना ही है और सही प्लानिंग से पढ़ना है। जैसे मैंने बताया 3-3 घंटे में डे को डिवाइड कीजिए, उसमें आप एक एक टॉपिक सेलेक्ट कीजिए। डे के एंड में ये देखिए कि आपने जो प्लानिंग किया था वो आपने पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए, नहीं पढ़ पाए तो क्यों नहीं पढ़ पाए, और अगले दिन अपनी प्लानिंग को पूरा करने के लिए आपने किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए। तो इस तरीके से डेली की जब प्लानिंग आप पूरी करेंगे तो आप महीने की और पूरे सिलेबस की प्लानिंग भी कर पाएंगे। अगर आप एक डे का प्लान नहीं कर पाते तो आप आखिरी का प्लान भी नहीं कर पाएंगे। सर जैसे बच्चे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, उसके साथ उसे बुक के साथ अटैच करके किस तरीके से उसको करना चाहिए? जब वो टेस्ट सीरीज लगाते हैं उनको फिर वो प्रॉब्लम आती है, प्रीवियस फिर किस ईयर के तरीके से क्वेश्चन आप? पेपर्स आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। जब जब हम्म। आप वो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उन टॉपिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। आप चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, इस तरीके से कीजिए। सर आप
अपनी जॉब को और राइटिंग दोनों एज अ राइटर किस तरीके से मैनेज कर पाते हो? नहीं, जो भी फ्री टाइम मिलता है, जैसे मॉर्निंग में या नाइट में, और जब मिलता है, तो जरूरी नहीं कि डेली मिलेगा और डेली ही लिखूंगा मैं। जिस दिन मिलता हम्म। है उस दिन मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली जॉब पहले आता है, सर्विस पहले आती है, और उसके बाद हॉबीज आती हैं। और हॉबीज तभी होती है जब आपको फ्री टाइम मिलता है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको रोज ही करना है या अ, ये जरूरी है। जब समय मिला तब मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। Okay, sir, it's all your excellency, sir. Thank you again for taking time out for your busy day. We look forward to hearing from you again soon. Have a good day, sir.